Hello students, these are active noise cancellation headphones. Best possible solution to avoid background sound. Active noise cancellation headphones consist of small microphones, one on each earpiece. They detect the ambient noise that arrives at the ears. A special electronic circuit is built inside the earphone to create sound waveforms exactly opposite to the arriving noise. This is called anti-sound. That means, students, the two waves are arriving out of phase. This results into destructive interference, and that is the reason resultant waveform will look like this. That's why I told you students, active noise cancellation headphones is the best possible solution to avoid background sound. And this destructive interference is possible due to superposition of waves. This is an amplifier. Best possible solution to amplify sound signal. This amplifier detects the original sound. A special electronic circuit is built inside the amplifier to create sound waveforms that arrive in phase. This results into constructive interference, and hence the resultant waveform is of greater amplitude. This constructive interference is possible because of superposition of waves. Let's understand this superposition of waves. Principle of superposition of waves. When two or more waves traveling through a medium arrive at a point of the medium simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the others. Students, waveform number 1 is traveling through a medium. At a particular point, it gives you displacement of y1. On the other hand, waveform number 2 is traveling through a medium. At that same point, it gives a displacement of y2. Similarly, waveform number 3 traveling through that medium arrives at that point and it gives a displacement of y3. Likewise, n number of waves are meeting at a particular point. So what will be the resultant displacement at that point, students? The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to all the waves. Students, for first wave, the displacement is y1 at that point. At that same point, due to second wave, the displacement is y2. At the same point, due to third wave, the displacement will be y3 and so on, students. So the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of displacement due to all the wave, students. That means मैं कह सकता हूँ y vector is equals to y1 vector plus y2 vector plus dotted मतलब so on बच्चों. समझेगा ये, राइट? स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, वी कैन अप्लाई दिस फॉर साउंड वेव्स, फॉर लाइट वेव्स एंड ऑल्सो फॉर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग. स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के 3 एप्लीकेशन भी हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. दैट मीन्स adding waves that differ in phase. Second application, students, formation of beats. इसका मतलब हुआ students, adding waves that differ in frequency.
third application of this superposition principle is formation of stationary wave. इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स एडिंग वेव्स दैट डिफर इन डायरेक्शन. ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के समझने के टोटल दो तरीके हैं. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड इज एनालिटिकल यानी मैथमेटिकल मेथड. राइट नाउ स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड. वो ग्राफिकल मेथड पढ़ने के पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ ले. स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिप्रेजेंटेड अ ट्रांसवर्स वेव इन फ्रंट ऑफ यू. ट्रांसवर्स है या लॉन्जिट्यूडिनल है स्टूडेंट्स? ये एक ट्रांसवर्स वेव है. अच्छा, ये प्रोग्रेसिव है या स्टेशनरी है बच्चों? तो ये एक प्रोग्रेसिव वेव है विच इज कंटिन्यूसली एडवांसिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन. स्टूडेंट्स हम एक काम करेंगे, हम फेज समझेंगे. यस, ओवर हियर स्टूडेंट्स द फेज विल बी 0. स्टूडेंट्स मैं फेज को π/2 आगे बढ़ाता जाऊंगा, मतलब मैं 90 डिग्री आगे बढ़ाता जाऊंगा. 0 स्टूडेंट्स, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π. स्टूडेंट्स हमें वेवलेंथ पता होना चाहिए. द मिनिमम डिस्टेंस between the two particles of the medium which are in same state of vibration is called as wavelength, which is denoted by lambda. Students, look at this particle which is situated at a phase of π/2. Then you look at this particle which is situated at a phase of 5π/2. बच्चों π/2 and 5π/2 इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है बच्चों, फेज डिफरेंस, दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2π रेडियन. एंड बच्चों जब कभी भी दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस 2π रेडियन का होगा ना, सो डेफिनेटली उनके बीच जो डिस्टेंस होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा, वो होगा लैम्डा. नाउ लेट मी कंसिडर अ जनरलाइज्ड पोजीशन P स्टूडेंट्स. P एक पोजीशन में एज्यूम कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे. अब हम देख पा रहे हैं यहां से लेके, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूं एंड P तक अगर एक मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं, सो ये डेफिनेटली लैम्डा या लैम्डा का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं लग रहा है. लेट मी से दैट डिस्टेंस, दैट पाथ डिफरेंस इज x. तो बच्चों जब कभी भी दो पार्टिकल के बीच पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा, तो हम जानते हैं जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π होगा. So in general, if the path difference is x, so what will be the phase difference बच्चों? हम नहीं जानते. That is denoted by lambda. Students, whenever in between two particles, path difference is lambda, so phase difference is 2π for sure. So whenever there is a general path difference, let's say x, so phase difference is what? I don't know. That I don't know is denoted by delta बच्चों. डेल्टा को हम इन जनरल बोलेंगे फेज डिफरेंस. एंड स्टूडेंट्स ये जो फेज डिफरेंस है डेल्टा, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? यस, लैम्डा के लिए 2π, सो x के लिए डेल्टा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों. लैम्डा इंटू डेल्टा will give you 2π into x. I repeat, lambda into delta will give you 2π into x. That means students, when you rearrange, you get delta is equals to 2π x by lambda. Phase difference delta is equals to बच्चों 2π x by lambda. Very important formula students. Students, now we have to understand the concept of principle of superposition of waves using graphical method. We are going to consider two special type of interference: constructive interference and destructive interference. Let me tell you students, here we will consider a special case. हम ऐसा consider करने वाले हैं बच्चों कि दोनों वेव फॉर्म जो इंटरफियर हो रहे हैं उनका जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स है वो इक्वल है. मतलब
पहले वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो मैं ए कंसिडर करने वाला हूं स्टूडेंट्स, दूसरे वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड भी मैं ए ही कंसिडर करने वाला हूं. सेम इज वैलिड इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों. So we are going to understand two special type of interference students, constructive interference and destructive interference, and to make the task easy for your understanding purpose हम ऐसा assume करने वाले हैं कि दोनों जो interfering waveform है बच्चों उनका जो amplitudes है वो equal है. That is students A1 is equals to A2. पहले बच्चों हम समझ रहे हैं constructive interference. Students, दिस इज वेव फॉर्म नंबर 1 जिसका ओरिजिन यहां पे है 0,0 पे है, राइट. वेव फॉर्म नंबर 2 बच्चों इसका ओरिजिन भी सेम है 0,0 पे. ओके स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमें टाइम रखना है या फिर एंगल, दैट इज फेज डिनोटेड बाय थीटा, जिस थीटा को हम लिखते हैं बच्चों ओमेगा टी. सो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे आइदर वी हैव टू कीप टी और ओमेगा टी. ऑन वाई एक्सिस बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट प्लेस करना है. फॉर फर्स्ट वेव फॉर्म बच्चों ये लीजिए एम्पलीट्यूड ए है, सेकेंड वेव फॉर्म ऑल्सो जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो ए है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम अज्यूमिंग दैट पहले वेव फॉर्म का क्रेस्ट एंड दूसरे वेव फॉर्म का क्रेस्ट साथ में सुपर इम्पोज हो रहा है. दैट मीन स्टूडेंट्स पहले वेव फॉर्म का ट्रफ एंड दूसरे वेव फॉर्म का ट्रफ साथ में सुपर इम्पोज हो रहा है. अगर ये पहले साइकिल के लिए वैलिड है स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली आगे वाले साइकिल के लिए बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग स्टूडेंट्स, पहले वेव फॉर्म का क्रेस्ट एंड दूसरे वेव फॉर्म का क्रेस्ट एक साथ सुपर इम्पोज हुआ. दैट इज पहले वेव फॉर्म का ट्रफ एंड दूसरे वेव फॉर्म का ट्रफ एक साथ सुपर इम्पोज हुआ बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेव फॉर्म्स एक दूसरे को असिस्ट करने वाले हैं. दैट मीन्स द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म विल इंक्रीज. तो बच्चों जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हमें मिलेगा वो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला होगा. अब इसको हम समझेंगे यूजिंग अवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस फेज 0. When phase is 0 बच्चों, for first waveform the displacement is 0. What about second waveform students? Displacement is 0. 0 plus 0 will give you 0 बच्चों, right? Look at phase pi by 2 students, pi by 2. For first wave the displacement is plus a. For second wave also the displacement is plus a. Plus a plus of plus a will give you plus 2a बच्चों, plus 2a, right? Look at phase pi students. Phase pi पे आप देखिए, for first waveform the displacement is 0. For second waveform also the displacement is 0 बच्चों. So 0 plus 0 will give you 0. Okay? आगे बढ़ते हैं बच्चों. 3 pi by 2 phase को देखिए. For first waveform the resultant displacement is minus a. What about second waveform बच्चों? Minus a. For first waveform the displacement is minus a. For second waveform the displacement is again minus a. बच्चों minus a plus of minus a. In simple terms it is like minus a will give you minus 2a. आगे बढ़ते हैं बच्चों phase 2 pi पे. Phase 2 pi पे for first wave the displacement is 0. For second wave also the displacement is 0 बच्चों. So 0 plus 0 has to give you 0. Student, this is what I explained you about cycle number 1. That is up to 2 pi radian बच्चों. Students, जैसा 0 से 2 pi के बीच आपको वेवफॉर्म मिलेगा, यूजिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट आप भी 2 pi से 4 pi के बीच ड्रॉ कर सकते हैं. समझेगा बच्चों ये? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जब एक क्रेस्ट दूसरे वेवफॉर्म के क्रेस्ट के साथ, दैट इज एक ट्रफ दूसरे वेवफॉर्म के ट्रफ के साथ जब सुपर इम्पोज होगा, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमम मिलेगा. ये हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा स्टूडेंट्स. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिससे रिजल्टेंट वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड बच्चों हमें ज्यादा मिलने वाला है. स्टूडेंट, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अवर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. स्टूडेंट्स, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर
waves should meet in phase. बच्चों इन फेज का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहले का क्रेस्ट शुड बी विथ दूसरे का क्रेस्ट. दैट मीन्स पहले का ट्रफ विथ दूसरे का ट्रफ. बच्चों नाउ हाउ यू एक्सप्रेस दिस इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव फॉर्म. बच्चों इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव आप कह सकते हैं पहले का कंप्रेशन शुड इंटरफियर विथ दूसरे का कंप्रेशन. यस, एंड पहले वेव फॉर्म का रारेफैक्शन शुड मीट विथ दूसरे वेव फॉर्म का रारेफैक्शन. बच्चों राइट, इसका मतलब होता है बच्चों वेव्स आर मीटिंग इन फेज, दैट विल ऑब्वियसली गिव यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बच्चों फर्स्ट वेव फॉर्म स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वेव फॉर्म एम्पलीट्यूड जिसका ए है. व्हाट अबाउट सेकेंड वेव फॉर्म जिसका एम्पलीट्यूड भी ए है. बच्चों बट दिस टाइम हम चाहते हैं दैट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड टेक प्लेस. सो व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, हमें वेव फॉर्म ऐसे सोचना है कि पहले वेव फॉर्म का क्रेस्ट एंड दूसरे वेव फॉर्म का ट्रफ साथ में इंटरफियर हो. दैट मीन्स बच्चों पहले वेव फॉर्म का ट्रफ विल इंटरफियर विथ दूसरे वेव फॉर्म का क्रेस्ट, तभी आपको बच्चों मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कैसे, चलिए समझते बच्चों. व्हेन द फेज इज जीरो फॉर फर्स्ट वेव फॉर्म द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सेकेंड वेव फॉर्म द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव. स्टूडेंट 0 plus 0 हैज टू गिव यू 0. नाउ व्हाट अबाउट फेज पाई बाई 2. बच्चों एट फेज पाई बाई 2 for first waveform the displacement is plus a, for second waveform the displacement is minus a. students so plus a and minus a resultant you will get 0. बच्चों मतलब ये टाइम वाले यानी ओमेगा टी वाले एक्सिस पे ही रहेगा, राइट. मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ही आपको रिजल्टेंट मिल रहा है बच्चों, बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ प्लस ए एंड माइनस ए शुड बी इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट फेज पाई. एट फेज पाई for first waveform the displacement is 0, for second waveform also the displacement is 0. 0 and 0 the resultant will be 0. बच्चों right. phase 3 pi by 2 देखते हैं बच्चों. for first wave the displacement is minus a, for second wave the displacement is plus a. at phase 3 pi by 2 for first wave the displacement is बच्चों देखिए minus a and second wave के लिए displacement is plus a. Students, what is the resultant of minus a and plus a? It has to be 0. Now what about phase 2 pi बच्चों. 2 pi पे पहले वेव फॉर्म का डिस्प्लेसमेंट 0 है, दूसरे वेव फॉर्म का डिस्प्लेसमेंट भी 0 है. स्टूडेंट 0 and 0 का रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी 0. स्टूडेंट दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फॉर फर्स्ट साइकिल. हम देख पा रहे बच्चों कि हमें जितने भी रिजल्टेंट मिले वो सारे के सारे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही मिले, मतलब दोनों वेव फॉर्म ने एक दूसरे को अपोज कर लिया एंड हमने तो वैसे ही एम्पलीट्यूड इक्वल अज्यूम किया बच्चों. सो रिजल्टेंट हमें मिल गया 0. स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन विच रिजल्टेंट हमें बहुत कम मिलेगा या फिर आप कह सकते हैं मिनिमम मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, रिजल्टेंट हमें मिल गया बच्चों एकदम मिनिमम. और हमारे स्पेशल केस में क्या था बच्चों, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, तो आप जब कैंसलेशन सोचेंगे आपको 0 ही मिलने वाला है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ माय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बच्चों अगर हम चाहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, सो द वेव्स शुड मीट ईच अदर आउट ऑफ फेज. बच्चों आउट ऑफ फेज का मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहले का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ इंटरफियर करे एंड पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ इंटरफियर करे. नाउ हाउ यू स्पीक द सेम इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव. पहले का कंप्रेशन शुड इंटरफियर विद दूसरे का रारेफैक्शन एंड पहले का रारेफैक्शन शुड इंटरफियर विद दूसरे का कंप्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट आई हैव अज्यूम्ड कि दोनों वेवफॉर्म का जो ओरिजिन है वो फेज 0 पे ही है. सो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका फेज देखूं 0 है
और ये दूसरे वेव फॉर्म का फेज भी 0 से ही है, राइट। तो बच्चों 0 and 0 द फेज डिफरेंस विल बी 0। फर्स्ट वेव फॉर्म फेज बच्चों 0, सेकेंड वेव फॉर्म भी 0, सो 0 0 द फेज डिफरेंस विल बी 0 बच्चों, राइट। अब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बच्चों? टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट आई विल टेक फर्स्ट वेव फॉर्म फॉर रेफरेंस, ओके। एंड बच्चों सेकेंड वेव फॉर्म में आगे एक्सटेंड करूंगा। लेट्स से कि सेकेंड वेव फॉर्म का ओरिजिन यहां होता बच्चों, मतलब समझे आप, सोर्स, आप इसे सोर्स भी कह सकते हो। सेकेंड वेव फॉर्म का बच्चों सोर्स यहां होता, तो सेकेंड वेव फॉर्म यहां से ओरिजिनेट होता, तो उस समय बच्चों सेकेंड वेव फॉर्म जो है वो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है। मतलब कहां से ओरिजिनेट हो रहा है बच्चों? कौन से फेज से? 2 पाई से। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वेव फॉर्म तो 0 पे ही है, सेकेंड वेव फॉर्म का सोर्स इज एट 2 पाई, तो बच्चों ये तो 0 पे ही है और ये 2 पाई पे है। 0 and 2 पाई द फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बच्चों। क्यों ना हम इसका सोर्स और आगे शिफ्ट कर दे बच्चों। दूसरे वेव फॉर्म का सोर्स बच्चों अगर यहां होता, तो दूसरा वेव फॉर्म कौन से फेज से स्टार्ट हो रहा होता बच्चों? 4 पाई। एंड फर्स्ट वाला तो रेफरेंस 0 पे है बच्चों, ये 0 पे है बच्चों, और दूसरा वाला 4 पाई। 0 and 4 पाई द फेज डिफरेंस विल बी 4 पाई। स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड विथ 0, आफ्टरवर्ड्स 2 पाई, फिर 4 पाई, तो बच्चों आगे आप सोच सकते हैं 6 पाई, लेटर ऑन 8 पाई, 10 पाई, राइट, एटसेट्रा। दैट मीन स्टूडेंट्स आपको इन जनरल फॉर्मूला मिलने वाला है 2 पाई एन। एन के आप अलग अलग होल नंबर वाले वैल्यू डाले बच्चों, 0 से लेके बहुत सारे वैल्यू, राइट। सो यू सब्सटीट्यूट स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू 0 इन फॉर्मूला 2 पाई एन। एन को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं बेटा मैं 0, 2 पाई इंटू 0 विल गिव यू 0। फिर मैं n को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं बेटा 1, 2 पाई इंटू 1 विल गिव यू 2 पाई। देन स्टूडेंट्स n को मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूं 2 पाई इंटू 2 बच्चों 4 पाई, फिर आप 3 पुट करोगे n तो आपको 6 पाई मिलेगा, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस शुड बी 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, एटसेट्रा। दैट मीन्स इन जनरल फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स 2 पाई एन, वेर एन विल बी 0, 1, 2, 3, एंड सो ऑन बच्चों, यानी डॉटेड डॉटेड मैंने लिखा आपके लिए। स्टूडेंट्स अभी जब फेज डिफरेंस होगा 0 तो पाथ डिफरेंस भी क्या होगा? 0। व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, पाथ डिफरेंस होगा बच्चों लैम्डा। फॉर फेज डिफरेंस 4 पाई, पाथ डिफरेंस विल बी 2 लैम्डा। फॉर फेज डिफरेंस 6 पाई, पाथ डिफरेंस विल बी बच्चों 3 लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस होगा बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, एंड डॉटेड डॉटेड, मतलब सो ऑन बच्चों। तो बच्चों जिसको ये पॉइंट में क्वेरी आ रहा है वो बच्चा हमारा जो फॉर्मूला था बच्चा, डेल्टा वाला फॉर्मूला, फेज डिफरेंस वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको फ्यू मिनट्स अगो बताया, डेल्टा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, उसमें आप बेटा फेज डिफरेंस डेल्टा को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको एक्स के अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगे, वो ये वैल्यू होंगे। इन केस यू हैव क्वेरी आप डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, करस्पॉन्डिंगली पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, एंड सो ऑन। फॉर विच इंटरफेरेंस बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ व्हेन वुड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर? फॉर फेज डिफरेंस बच्चों हम बोलेंगे फॉर फेज डिफरेंस पाई। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा पाई बच्चों? बच्चों आप देखिए ये जो क्रेस्ट है इसका फेज कहां पे है? 0 पे है, राइट, 0 पे है बच्चों। और ये दूसरे वेव फॉर्म का बच्चों क्रेस्ट देखिए, इसका फेज क्या है बच्चों? पाई। सो फॉर फर्स्ट वेव द क्रेस्ट इज एट फेज 0 बच्चों। एंड बच्चों दूसरे वेव फॉर्म का जो क्रेस्ट है वो कौन से फेज पे है? पाई पे। तो बच्चों ये 0 पे है, वो पाई पे। 0 एंड पाई, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बच्चों? पाई, राइट। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम लोग इसके सोर्स को ऐसा अज्यूम करेंगे कि शिफ्ट हो गया। मतलब स्टूडेंट्स इसका जो सोर्स है वो यहां आ गया, दूसरे वेव फॉर्म का सोर्स बच्चों यहां पे आ गया, ऐसा आप सोच लीजिए। तो बच्चों उसका सोर्स कहां पे है आपके लिए? अभी 3 पाई पे है, 3 पाई। और बच्चों फर्स्ट वाला तो आप रेफरेंस पे रखे, वो तो अभी भी 0 पे ही है। तो फर्स्ट वेव फॉर्म का सोर्स बच्चों 0 पे है, सेकेंड वेव फॉर्म कहां पे है बच्चों? 3 पाई। स्टूडेंट 0 एंड 3 पाई, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? 3 पाई। स्टूडेंट्स आपको पाई फेज डिफरेंस मिला, लेटर आपको मिला 3 पाई।
आगे मिला बच्चों आपको 5 पाई, तो आगे क्या मिलेगा 7 पाई, राइट। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, आगे बच्चों 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई एटसेट्रा। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स हमें पाई के सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। देखिए 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, राइट। तो ऑड नंबर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? इट इज डबल करके +1, 2n+1 बच्चों, मैंने कहा 2n+1, राइट। सो फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एटसेट्रा। सो जनरल फॉर्मूला विल बी डबल करके +1 मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मीन्स 2n+1 एज अ मल्टीपल ऑफ पाई बच्चों। अभी आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप n के होल नंबर वाले वैल्यूज एक एक करके सब्स्टिट्यूट करिए। यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 0 बेटा, 2 into 0 0, 1 into पाई बच्चों 1 पाई, दैट इज पाई। देन स्टूडेंट्स n को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, n को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तो आपको मिलेगा बेटा 3 पाई। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2 बेटा, यू विल गेट 5 पाई। यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 3 बेटा, यू गेट 7 पाई, एंड लाइकवाइज, राइट। और बच्चों जब भी फेज डिफरेंस होगा पाई, करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस विल बी λ/2। When phase difference is 3 pi बच्चों, path difference will be 3 λ/2। 5 pi phase difference पे बच्चों 5 λ/2। 7 pi phase difference पे बच्चों 7 λ/2 and so on. So students, here we are getting all the odd multiples of λ/2। देख लीजिए 1, 3, 5, 7 etc. तो बच्चों odd number यानी डबल करके +1, 2n+1 मल्टीपल ऑफ λ/2, एंड स्टूडेंट्स n के वही वैल्यूज मैं कंसिडर करूंगा जो मैंने यहां किए थे, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। स्टूडेंट्स इन केस यू हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू द फैक्ट के पारस सर ने फेज डिफरेंस के हेल्प से पाथ डिफरेंस कैसे ढूंढ लिया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला स्टूडेंट, जो मैंने आपको लेक्चर के बिगनिंग में बताया था। फेज डिफरेंस डेल्टा बच्चों 2 पाई x/λ, राइट। आपके पास बच्चों ग्राफ के हेल्प से फेज डिफरेंस डेल्टा तो आ जाएगा। यू सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा, राइट। लाइक फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने कहा कि फेज डिफरेंस होगा स्टूडेंट 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई एटसेट्रा। You substitute different values of delta beta, you will get different values of x यानी path difference, okay। And for destructive interference बच्चों delta होगा हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई etc. You substitute those values of delta, you will get different values of x, okay।